Gurudev, in this fast-paced world of overloaded information and social media, uh, हमने ना एक पैटर्न देखा, एक पैटर्न इमर्ज हुआ है फ्रॉम डिप्रेशन टू ड्रग्स टू सुसाइड्स आजकल बहुत कॉमन है बहुत ज्यादा। अडल्ट्स में स्पेशली यंगस्टर्स कुछ भी हो जाए थोड़ी सी परेशानी आ जाए सीधा सुसाइडल हो जाते हैं सो हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच इश्यूज व्हाट नीड्स टू बी डन You know, if you are thinking only about yourself, if you sit and what about me, what about me, what about me, this is the mantra to get depressed. You wake up and see. You know, I give a call for all those who have this slightest tendency of suicide. Know that there are many people who are dependent on you. At least start thinking about them. I'm telling all the young people, if you commit suicide, you know how your mother, your father, those people, Yes. your brothers, your sisters are, you are putting you in deep misery, deep sorrow. Is it right for you to do that? This is what we must ask them to see. And next thing I would say, they must do meditation. You know why you have even this feeling? हमें क्यों ऐसा भाव आता है? ताकि हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो जब सिकुड़ता है हमको दुख का अनुभव होता है और सिकुड़ता है तो डिप्रेशन और सिकुड़ता है तो सुइसाइडल टेंडेंसी होती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर को विकसित करना चाहिए यही प्राणायाम क्रिया मेडिटेशन करता है 2 दिन में आपको उसका अनुभव में आ जाएगा देखिए हमारा आपका अनुभव क्या है जब खुशी होती है आपका अनुभव क्या है आपके भीतर से कोई चीज एक्सपैंड हो रही हो यही है ना अनुभव दुख होता है तो क्या होता है as though something is crushing you feel that something inside you has shrunk you are crushed तो ये क्या चीज है तुम्हारे भीतर विकसित होने से खुशी श्रिंक होने से दुख लगता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको हैंडल करने के लिए ब्रीदिंग है प्राणायाम करो मेडिटेशन करो आप ऐसे झट से उससे बाहर आ जाओ यस गुरुदेव आई मैं बिल्कुल आपकी ये बात से सहमत हूँ इनफैक्ट आज ही मैं आपके 2 छोटे छोटे बच्चों से मिली जो इंट्यूशन प्रोग्राम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आई रियलाइज्ड that how important it is for every parent to introduce their children to intuition programs. So, yes, I completely agree with you. Gurudev, a similar issue is love, because at the end of the day, love is responsible for a lot of things. We often say love is divine, but so much harm also has been done in the name of love, whether it's battles, wars, all sorts of violence. My question, Gurudev, is what sort of love is actually divine? And is there actually something called a true or worthy love? And what about those? This is very important that I want to ask you. What about those who don't believe in love and for them hate or evil comes naturally? You know, they can naturally be evil or hate people and even spread it. How to deal with such people? Yeah. Let me tell you, you know, not a single child has come onto this planet as hateful child. आप बच्चों को देखिए उनके आंखों में देखिए प्यार ही प्यार है Every child has come into this planet as a bundle of joy. A bundle of joy and bubbling enthusiasm. Due to circumstances and due to the impressions of events, they get distorted. You know, hate is nothing but love standing upside down. Love is twisted and becomes hatred. You know, all these negative emotions are nothing but distortion of love. Love plus knowledge
leads you to bliss. Love plus ignorance leads you to all this sort of anger, jealousy, hatred. ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है. मगर प्रेम अपना स्वभाव है, स्वरूप है. जैसे योर बॉडी इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. आपकी चेतना जो है, इट इज मेड अप ऑफ लव. So Gurudev, have you ever experienced love yourself? मेरा भी सेम सवाल था, एक पर्सनल सवाल है, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? मैं तो प्रेम में रहता ही हूँ हमेशा. Personal prem. ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रेम में पड़ गए. अक्सर लोग बाबा बन जाते हैं जब उनका प्यार का जीवन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ टूट जाता है, कोई दिल तोड़ जाता है, तो फिर वो टूटे हुए दिल को लेके अध्यात्म में चल पड़ते. ऐसा मेरा कभी कुछ नहीं हो. तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे सबका जो टूटी हुई दिल को जोड़ता रहता हूँ. इसलिए हम कहता हूँ आप यहाँ पर हार्ट को रिपेयर कर लेते हैं, आप फिर स्वस्थ होके चल पड़ेंगे. थैंक यू गुरुदेव. जाने से पहले मैं सीपी नीनू जी से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार वो कुछ कहे. आई जस्ट पास ऑन द माइक टू हिम. हमारे बीच में वी हैव सीपी गुरनानी. सीपी गुरनानी इज अ फॉर्मर सीईओ एंड एमडी ऑफ टेक महिंद्रा. ही इज चेयरमैन ऑफ IIM नागपुर and also he is a former chairman of NASSCOM and a great IT leader of the country. सॉरी, आप सवाल पूछे उसके पहले मैं चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस आपने आज आश्रम में फील किया आप वो भी शेयर करें. और सिंपल भाषा में मैं अगर गुरनानी साहब के बारे में कहूँ तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं जो एक लेजेंडरी शख्सियत है, आप फाइनेंस वर्ल्ड के मिस्टर बच्चन हैं. ये मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो. गुरुदेव, आज से पहले एक बार पहले भी आपसे मिलने का मौका मिला था जब रोहित जी ने मेरे को आपसे दिल्ली में मिलवाया था. और मैं यही कहूँगा कि उस दिन की मुलाकात वॉज मोर मैकेनिकल, बिकॉज जो मैं यहाँ आने के बाद फील किया, यहाँ आने के बाद में एक एक कार्यवाहक को कहूँ या वॉलंटियर्स कहूँ या जो सेवक कहूँ या एक तरह से एक ओनरशिप कहूँ जो लोगों में थी, उससे जो फीलिंग आई तो मन में सिर्फ एक ख्याल आया, इतनी पॉजिटिविटी, इतना एंथुसियाज्म और इतना डिजायर टू ब्रिंग इन सोसाइटल चेंजेस अगर कॉरपोरेशंस में आ जाए तो हम पता नहीं कहां से कहां पहुंचेंगे. और जब ये मैडम प्रेम की बात कर रही थी, मैं तो जब गौशाला गया तो मैंने तो वहां गायों में प्रेम देखा. तो गुरुदेव, सिर्फ दिल में एक जरूर ख्याल आया जब वो श्रेया जी ने 3 बच्चों को वो इंट्यूशन वाला डेमो दिखवाया जिसमें वो किताब पढ़ रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि बॉल कहाँ गिरेगी. मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था जिसका जवाब दिया नहीं कि जिन लोगों का हम जैसी उम्र में, जब ये बोले ना अमिताभ बच्चन, जब भेजा फ्राई हो जाता है तो उसको कैसे रिजुविनेट करते हैं. सिर्फ उमंग होनी चाहिए, इच्छा हो. वो एक
एक बात है ना, जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाय। तो शरीर के लिए तो उम्र है, मगर मन का कोई उम्र नहीं है।